मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। स्टार्टअप्स आज भारत की नई ताकत बन रहे हैं, जिसमें देश के युवा अपने आइडिया और मेहनत से टेक्नोलॉजी की नई कहानी लिख रहे हैं। और इस बदलाव के बीच खड़ा है IIT कानपुर। रोबोटिक्स हो, एरोस्पेस हो, वायरलेस चार्जिंग या साइबर सिक्योरिटी, यहाँ के स्टार्टअप सिर्फ आइडिया नहीं बना रहे, बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं जो भारत को टेक में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए कैसे अब टेक्नोलॉजी सिर्फ पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है, ये बन चुकी है करियर, स्टार्टअप और बड़े सपनों का रास्ता। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। युवा इनोवेटर्स तकनीक और उद्यमिता के जरिए भारत के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। इस बदलाव की पंक्ति में है IIT कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC। SIIC ऐसे स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च पैड बन चुका है, जहां फंडिंग, मेंटरशिप और संसाधन एक साथ मिलते हैं। यहीं से उभरी है एक्सटेरा रोबोटिक्स, जो रोबोटिक्स में नई क्रांति ला रही है। खेती, फैक्ट्रियों, रक्षा और आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र के लिए तैयार ये रोबोट काम को बना रहे हैं ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और कुशल। So this robot is built with the ideology that these robots are capable of moving around us. Usually you will see robots which work in isolation in cages in industry, industrial, automotive or even warehouses. But these robots are designed to work around us. So SIIC, IIT Kanpur had provided us the environment first to build these kinds of robots, as well as being in IIT Kanpur, it has been fruitful to work with the students which are part of this institute. इसी इकोसिस्टम से निकला एक और स्टार्टअप है साइमेट्रिकल्स। IIT कानपुर के PhD स्नातक बालाजी श्रीराम ने देश की पहली स्वदेशी वायरलेस चार्जिंग तकनीक विकसित की है। सरकारी समर्थन और वैश्विक ऑर्डर्स के साथ ये स्टार्टअप भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहा है। I had received a government grant. It's called the PFC CSR scheme. Over a period of 4 years, we established ourselves as a wireless charging company, not just in India, but also in abroad. So now we have orders from abroad also, from Australia, from Dubai, and from New Zealand, and also from Malaysia, and even from Singapore. अंतरिक्ष क्षेत्र में भी IIT कानपुर के इनोवेटर्स नई उड़ान भर रहे हैं। ड्रीम एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज उपग्रहों के लिए हरित और भरोसेमंद प्रोपल्शन सिस्टम बना रहा है। We are also focusing on making India product only. We are whatever the product right now, completely we can go for a make in India, completely which can be developed and manufactured in India and then utilized in India itself. IIT कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऐसे कई स्टार्टअप्स को संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान कर रहा है। यहाँ उद्देश्य केवल कंपनियां खड़ी करना नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना है। We have approximately 150,000 square foot of usage space. Our primary goal is to support all kinds of startups wherever we find that there is a potential for helping the country grow. साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर IIT कानपुर का C3I हब पिछले 5 वर्षों में 50 से अधिक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा चुका है। The whole objective is to how we get those startups uplifted to come with the innovative and indigenous solution which can help us to prevent the cyber attack, or rather to increase or rather to strengthen the cyber security posture. रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी नवाचार तेज हो रहे हैं। एरोसिस एविएशन इंडिया GPS डिनाइड नेविगेशन वाले कामिकाजे ड्रोन विकसित कर रहा है। So what we are doing is we are actually trying to build kamikaze drones that can actually intercept these drones, which are actually comparatively cheaper than your air systems or the Akash air system or even the S-400 missile system that we have. Our drones are they'll be completely autonomous. They can track other drones in any vicinity, and they can actually attack those drones, and they are much more cheaper to operate as well.
So there is a need for a very focused initiative here, which fortunately the government of India has realized and is started taking the steps towards it, which is to provide support to develop critical technologies within the country in multiple domains. रोबोटिक्स के लिए एरोस्पेस, साइबर सुरक्षा से ऊर्जा तकनीक तक आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत कर रहे हैं। ये सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे, बल्कि भारत के वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का भविष्य गढ़ रहे हैं। आपको लगता होगा कि आज का युवा सिर्फ मोबाइल पर रील्स देख रहा है और किताबों से दूर होता जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। डिजिटल दौर में पली ये पीढ़ी आज फिर से किताबों की तरफ लौट रही है। चाहे प्रिंट की किताबें हो या डिजिटल ई बुक्स या फिर ऑडियो बुक्स, पढ़ने और सुनने का जुनून दोबारा ट्रेंड में है। आइए देखते हैं कैसे किताबों की ये नई दीवानगी युवा सोच को एक नया आयाम दे रही है। मिलिए अभय कुमार से, भारतीय राजनयिक और मशहूर लेखक जिनकी किताब नालंदा काफी चर्चा में रही है। वो आमतौर पर अवधी और भोजपुरी भाषा में कविताएं और कहानियां लिखते हैं ताकि हमारी लोक भाषाएं आगे भी जिंदा रहें। उनकी निजी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सोच को उड़ान मिलती है। यहाँ वो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को भी किताबों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। I think India has opened up in the sense now we have all kind of books available here. Those days it was very rare to find book by foreign writers in Hindi, for example. But I think now you see lots of people accessing reading material online, and finding, through internet, they are able to read anything which is published anywhere in the world actually. भाग दौड़ भरी जीवन शैली के बीच दिल्ली की रहने वाली 21 वर्षीय इप्शिता को भी किताबों में सुकून मिलता है। कभी पन्ने पलटते हुए तो कभी ऑडियो बुक सुनते हुए। उनका मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ना आसान बनाते हैं, लेकिन छपी किताबों का मजा अलग ही होता है। उनके लिए किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, वो एक एहसास है। Me, I've started reading at a very young age, and I've started with like physical paperbacks and then hardcovers. Obviously, both of these are the OG type of books, and I don't think there can be any comparison. Like, of course, Kindle and all still stands as a very useful mean, but if I had to choose, I would always choose paperbacks and hardcovers over these technological. आज पढ़ना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन चुका है और यही नजारा देश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले बुक फेयर में देखने को मिलता है, जहां लेखक, पब्लिशर और पाठक सब एक ही जगह जुटते हैं। कहीं किताबों की लॉन्चिंग, कहीं चर्चा, तो कहीं युवा पाठकों की भीड़। I think there's a lot of demand and readership is only going to grow, and this book fair is a great example where we are seeing crowds from all day coming and viewing books of all categories. Like there's been no space to even walk around the stalls, so it's very positive. It's a very positive sign, and I think India is going to continue to be a global publishing hub. अब किताबें सिर्फ पढ़ी ही नहीं जा रही, सुनी भी जा रही हैं। बुक्स वैगॉन ने एक नया फीचर शुरू किया है, जहां आप किसी भी किताब को अपनी ही आवाज में या किसी अपनी की आवाज में सुन सकते हैं। What we do is we take a little sample of your voice first, and then we let you choose any of the books that are present here, and then an audiobook would be get generated in your voice only.
जहां कुछ लोगों के लिए छपी किताबें फोकस और सुकून देती हैं, वहीं ई बुक्स ने पढ़ने को सबके लिए आसान बना दिया है। मोबाइल के जरिए पढ़ना सस्ता भी है और कहीं भी संभव है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, औसतन हर हफ्ते 10 घंटे से ज्यादा। किक बॉक्सिंग एक ऐसा मार्शल आर्ट्स जो आज के युवाओं में तेजी से पॉपुलर हो रहा है और ये बन रही है यंग इंडिया की नई स्पोर्ट्स चॉइस। इसका सबसे ज्यादा क्रेज तमिलनाडु में देखा जा रहा है, जहां बच्चों समेत लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये है फिटनेस का नया तरीका, सेल्फ डिफेंस की ताकत और मजबूत मानसिकता बनाने का जरिया। यानी हर मुकाबले के साथ बढ़ रहा है आत्मविश्वास और तैयार हो रही है एक और मजबूत पीढ़ी। मिलिए चेन्नई की 15 साल की जीवंतिका से। जब पूरा परिवार गहरी नींद में होता है, तब जीवंतिका अपने कोच की निगरानी में पंच और किक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके चेहरे पर पसीना उसकी मेहनत और जिद का सबूत है। हर दिन की ट्रेनिंग उसके सपनों की तरफ एक कदम है। ये एक ऐसी युवा एथलीट हैं जो मुश्किलों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती मानती हैं। So I am practicing for past 3 years. I have participated in district, state, and national and international championships. So I have placed so many medals. I have so many certificates. So I have placed so many gold medals, silver medals, and bronze medal. I have participated in World Cup, which was held at Uzbekistan. So I placed 2 bronze medals there. आज किक बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये युवाओं के लिए एक पहचान और जुनून बनता जा रहा है। आज के समय में युवा ऐसे खेल चाहते हैं जो उन्हें शरीर से मजबूत बनाएं, दिमाग से मजबूत करें, आत्मविश्वास दें और जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा भी सिखाएं। और किक बॉक्सिंग इन सब चीजों में पूरी तरह फिट बैठता है। एक और खास बात यह है कि किक बॉक्सिंग की जड़ें तमिलनाडु की पारंपरिक मार्शल आर्ट अडिथड़ा से जुड़ी हुई हैं। यानी ये खेल सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। Our players are training in the traditional martial arts, whereas kickboxing is the traditional martial arts from Tamil Nadu. It's in the ancient time it was called as Adithada. So today the modern sport kickboxing is developing many players across the state, all over Tamil Nadu, all over India as well. And in our academy particularly, we are training players from 5 years onwards, whether it's boys or girls, they are training consistently. And after 7 years, they can participate in the competition. तमिलनाडु के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक किक बॉक्सिंग सेंटर अब युवाओं से भरे रहते हैं। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में इसमें आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियां भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये दिखाता है कि किक बॉक्सिंग धीरे धीरे जेंडर वाली रुकावटों को तोड़ रही है और सबको बराबर मौका दे रही है। From the beginning it was very hard, but again and again if I tried and tried, it became very easy for me. So I went to many competitions, mostly like last year and this year also. So I went to Pune, then I went to many other places. Many young children are coming here and practicing. They are not wasting time in the mobiles or in TVs. They are actually they're engaged in this sports, and this sport is helping the younger children as well as the adults. Adults also participating in this kickboxing. सरकारी और निजी संस्थाएं भी अब इस खेल को सपोर्ट कर रही हैं। ट्रेनिंग, टूर्नामेंट और जरूरी सुविधाओं के जरिए आज तमिलनाडु में किक बॉक्सिंग लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का बड़ा मंच बन रही है। और जिस तरह से इसका क्रेज बढ़ रहा है, ये साफ है कि आने वाले समय में किक बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि बदलाव और सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। और कई युवा अपनी विरासत को ही एक मजबूत बिजनेस मॉडल में बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भदोही एक ऐसी ही मिसाल है, जहां पीढ़ियों से कालीनें बनती आई हैं, लेकिन अब यही शहर बन रहा है डिजाइन, स्टार्टअप और ग्लोबल एक्सपोर्ट का नया हब। जानिए कैसे विरासत ने टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया और कैसे यहाँ के युवा इस बदलाव की कमान संभाल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बनाना सिर्फ एक काम नहीं, एक विरासत है। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। ऊन को तैयार करने से लेकर धागों की रंगाई तक और फिर करघे पर बैठकर एक एक गांठ जोड़ना, हर कदम में धैर्य और मेहनत लगती है। एक कालीन तैयार होने में कई हफ्ते, कभी कभी कई महीने लग जाते हैं। समय के साथ काम करने का तरीका बदला है। अब डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार होते हैं, रंगों की जांच मशीन से होती है, कटिंग और फिनिशिंग में भी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, हर कालीन की पहचान अब भी कारीगर के हाथों से ही बनती है। ये भदोही, जैसे कि मैंने बताया कि जाना जाता है कालीन नगरी के नाम से, और यहाँ कालीन जो बनाए जाते हैं हैंडमेड कालीन है, हस्त निर्मित कालीन। और जब हस्त निर्मित कालीन है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी एंड आर्ट उसके साथ जुड़ जाता है। भदोही के पास आज कई रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं। आज इस उद्योग में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ रही है नई पीढ़ी। युवा डिजाइनर नए पैटर्न बना रहे हैं। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के जरिए कालीन सीधे विदेशों तक बेचे जा रहे हैं। स्टार्टअप मॉडल के जरिए छोटे कारीगर भी ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। अब कालीन सिर्फ परंपरा नहीं, एक क्रिएटिव बिजनेस मॉडल बन चुकी है। The youth have driven their liking into carpets because of their aesthetic mindsets, and it has evolved as they are like youth are now more into natural fibers, sustainability. जुलाई 2025 में भारत से कालीनों का निर्यात बढ़कर लगभग 1197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024 के लगभग 1107.9 करोड़ रुपए की तुलना में 8.05% अधिक है। ये आंकड़े कालीन के निर्यात क्षेत्र में लगातार मजबूती और सकारात्मक रुझान को दिखाते हैं। जो कालीन हम बना पा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो पूरी दुनिया में हमारे जो कंपटीटर रहे, वो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इजिप्ट, हम लोगों ने सभी को बीट करके हम लोगों ने अपना एकमात्र झंडा गाड़ा है पूरी दुनिया में भदोही के कालीन का। तो हमारा कोई कंपटीटर अब नहीं रह गया। अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है, अभी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। भदोही के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अब महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बन रही हैं। IICT जैसी संस्थाएं इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो खुद डिजाइन समझने, बुनाई करने और काम संभालने लगी हैं। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि आत्मविश्वास भी। घर से निकलकर अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी थी, तो उसमें क्या सिखाया गया, पहले ताना करना, फिर उसके बाद उसे लूम पे चढ़ा के उसके बाद बिनाई होती थी। अपने हमारे आर्टिजन हैं, ये लोग लोकल गांव के हैं एंड अपने उत्साह से समय से आते हैं। समय से आके पूरे समय यहीं ये लोग तन मन से जो है यहाँ पे काम सीखते हैं। भदोही का कालीन सिर्फ धागों का जाल नहीं है, ये मेहनत, हुनर और बदलती सोच की कहानी है। जहां एक तरफ परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक और युवाओं की नई दिशा। हर गांठ में छिपी है एक कहानी, हर डिजाइन में दिखती है एक नई सोच। और जब ये कालीन दुनिया के किसी भी कोने में बिछता है, तो साथ में ले जाता है भदोही के कारीगरों की पहचान, युवाओं की क्रिएटिव ताकत और आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास। अब हम आपको लेकर चलते हैं अमृतसर, एक ऐसी जगह जहां की हर सुबह शांति से शुरू होती है और शाम देशभक्ति और जोश से भर जाती है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ यहाँ पर स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल है, तो शाम को वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट, यानी एक ही शहर में आस्था भी है, इतिहास भी है और ऊर्जा से भरा जुनून भी, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो दिल और दिमाग दोनों में बस जाता है। अमृतसर एक ऐसा शहर जहां इतिहास, आध्यात्म और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित ये शहर पुरानी परंपराओं और आधुनिक विकास का सुंदर मेल है। संकरी गलियां और चहल पहल भरे बाजार इसकी पहचान है, तो वहीं नई इमारतें बदलते समय की झलक देती हैं। शहर के केंद्र में स्थित स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमिंदर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ है, जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं। करुणा, सेवा और पवित्र सरोवर की शांति अमृतसर को भक्ति और सुकून का विशेष शहर बनाती है। I think the beauty of Punjab is the inclusion of all the religion. That's what I was so inspired of. There is no rubbish, there is no trash on the street. Everyone is so clean, and then how can I say? Yeah, and everyone seems so proud of their culture. That is also really good. पवित्र गर्भगृह के आगे भक्ति का सबसे सशक्त रूप निस्वार्थ सेवा में दिखाई देता है। दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई में हजारों स्वयंसेवक मिलकर भोजन बनाते, परोसते और साझा करते हैं, इस भावना के साथ कि कोई भी भूखा ना रहे। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਲੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। आध्यात्मिक केंद्र से आगे अमृतसर इतिहास और आधुनिक जीवन की कई झलकियां दिखाता है। शाम होते ही अटारी बॉर्डर पर माहौल जोश से भर जाता है। हाथों में झंडे लिए भीड़ जुटती है और बीटिंग रिट्रीट समारोह शुरू होता है। अनुशासन, तालमेल और सटीक कदमों के साथ झंडे उतरते ही देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है, जो बलिदान, एकता और राष्ट्रीय गौरव को सजीव कर देती है। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको देख के आज बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। आई फील वेरी प्राउड। मतलब हर एक ने ज़िंदगी में, हर एक भारतीय ने ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ पे आके ये जो गर्मी, ये जोश जो है, ये जुनून जो है, वो महसूस करना चाहिए। अमृतसर अपनी समृद्ध और पारंपरिक पंजाबी भोजन संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो विरासत और आतिथ्य से जुड़ी है। यहाँ भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान की कहानी होता है। प्रार्थना, सेवा, देशभक्ति और लाजवाब स्वादों के संगम के साथ अमृतसर केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल में बस जाता है और यादों में हमेशा साथ रहता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।